Morning class 5. Good morning class 5. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, we are just continue the chapter number, which one chapter? The chapter number 6. And what is the name of our chapter? Greenland, the land of ice and snow. Okay students, in our last class what we have already read? We already read about the Greenland, history, location and extent also. Okay? And we have already read about the land features and climate as well. And I think you have already done the quick revision also. So beta, this is the map of, किसका map है ये? This is the map of Greenland in the world map. गॉट इट बच्चे. बेटा इफ़ यू हैविंग अ वर्ल्ड मैप, अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो आप इसे वर्ल्ड मैप में भी चेक करना. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट students. Before I'm starting this chapter, beta, continue this chapter, I want to say something to you. Beta, it is very important to watch full video. बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियोज़ देखें, बिकॉज आप विदाउट वीडियो क्वेश्चन पुट अप करते हो तो प्रॉब्लम होती है. सो क्वेश्चन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप 3 से 4 टाइम्स जो है इस वीडियो को देखो. Got it बच्चे? So let's start. So now in today's class we have just read about natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife. बच्चे, as you know that due to extreme cold weather, extreme means very high. I already mentioned here a meaning as well. Okay? Due to extreme cold weather, it is not possible to grow crops in a Greenland. We have already discussed about it कि the Greenland have a located on the north pole of the world. In अर्थ के नॉर्थ पोल पे है वो. दैट इज़ वाई दे हैव अ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर. सो क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो पाए? नो. सो ड्यूरिंग इन समर्स, बट आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉट आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि वहाँ पर कुछ टाइम के लिए समर्स भी होती हैं, बट वो भी समर्स काफ़ी ठंडी होती हैं, बट एक्सट्रीम ठंड नहीं होती. ड्यूरिंग समर मंथ्स प्लांट्स लाइक मॉसेस, बेटा दिस इज़ द काइंड ऑफ प्लांट, बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग ना मैम ये क्या होता है. तो इफ़ यू हैव एनी इशू तो यू कैन टाइप दिस वर्ड ऑन अ गूगल एंड चेक द पिक्चर ऑफ दीज प्लांट्स. mosses, lichens, grass, fern and bushes. What is that bushes? Bushes is a shrub. ये भी एक shrub होती है, जैसे herb and shrubs पढ़ते हैं हम लोग, तो this is the shrub. Grow here. So which one are grows here? Mosses, lychees, grass, fern and bushes. And trees or deep rooted plant do not grow here. इस एरिया में यानी कि ग्रीनलैंड में ट्रीज़ और डीप रूटेड प्लांट्स ग्रो नहीं होते. क्या नहीं होते? डीप एंड प्लांट्स ग्रो नहीं होते. ओनली एनिमल विच कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड, वो एनिमल जो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर पाए वो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि पोलर बेयर, मस्क ऑक्सिस, वल्रस, रेनडियर, Arctic fox, seals, Arctic hare are found in Greenland. Whales are also found in abundance here. Abundance का मतलब very high quantity, यानी कि यहाँ पर whales बहुत high quantity में मिलती हैं. Got it बच्चे? वैसे we already discussed this paragraph, मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. This is the animals: polar bear, musk ox, walrus, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स एंड सील्स ऑल्सो. बेटा सील की बॉडी पर हेयर नहीं होते, बट इसकी स्किन इतनी थिक होती है जिससे कि ये इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर पाती है. गॉट इट. बर्ड्स लाइक द टर्मिगन, वाइट टेल्ड एंड, बेटा दिस इज़ द काइंड ऑफ बर्ड, दिस इज़ द टर्मिगन.
white-tailed eagle and eider are also found in Greenland. Now we are just talking about the life of a people. We have already read this in this chapter कि only 60,000 people are living here. So how the people are living? So this least मतलब less densely populated country is inhabited less than 1 person in 1 square kilometer. 1 किलोमीटर में आपको यहाँ पर 1 person दिखेगा. Most of the people living here are Inuits. बेटा जैसे वी कॉल्ड इंडियंस, हमें इंडियंस कहा जाता है. इफ़ द पीपल हु आर लिविंग इन ग्रीनलैंड दे कॉल्ड इन्यूट्स. दे आर ऑल्सो नेटिव ऑफ आर्कटिक रीजन. ये आर्कटिक रीजन में भी रहते हैं इन्यूट्स, ग्रीनलैंड में भी रहते हैं. ओनली 20% पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, मोस्टली यूरोपियन. यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% लोग जो है वो अदर कंट्री से हैं, बाकी सारे यहीं के नेटिव्स हैं. इन्यूट्स वर अर्लियर कॉल्ड इस्किमोस. इन्यूट्स को पहले क्या कहा जाता था? इस्किमोस. आपको याद आया? हु कॉल्ड द इस्किमोस? दीज वन. दीज आर द इस्किमोस. अभी इन्हें हम इन्यूट्स बोलते हैं. बेटा दे हैव अ शॉर्ट हाइट. इनकी क्या होती है? हाइट शॉर्ट होती है. फ्लैट फेस होता है. नैरो आइज होती है, मीन्स छोटी छोटी आँखें होती है. इनिशली दे वर नोमैड्स. नोमैड्स को मैंने कल भी बताया था. व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ नोमैड्स? द पीपल हु आर लिविंग वन प्लेस टू अनदर. ओके, दे आर हंटिंग एंड फिशिंग करते हैं ये. दे आर मूविंग अराउंड. दे डोंट हैव अ permanent house, they have a temporary house at the made of ice blocks. And what we called? It is called a igloo. बेटा हमारी तरह इनके परमानेंट हाउसेस नहीं होते. दे आर जस्ट नोमैडिक, यानी कि नोमैडिक लाइफ जीते हैं. लाइक गोइंग वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड. ओके, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं. एंड बेसिकली दे बिल्ट अ टेम्पररी हाउस, दे कॉल्ड igloos. और ये किसके बने हुए हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ आइस. ओके, द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड मोस्टली वेयर क्लोथ्स विद द मेड अप ऑफ स्किन. बेटा इनकी क्लोथ्स इतने, बिकॉज ऑफ देयर इज द एक्सट्रीम कोल्ड, सो दैट्स वाई दीज, इनके क्लोथ्स किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ एनिमल स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स. ओके, दे ऑल्सो वेयर थिक जैकेट्स. ये बहुत मोटी जैकेट पहनते हैं. दे कॉल्ड अ पार्का. वट दे कॉल्ड? पार्का. हैव यू सीन इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आपको दिखेगा द गर्ल्स वेयर कॉल्ड पार्का. इसने पार्का पहना हुआ एंड ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग द पार्का. इट हैज़ द हुड टू कवर देयर हेड. हुडी है. हुडी मीन्स जिस जैकेट के पीछे कैप हो, दैट इज़ कॉल्ड हुड. इन समर पीपल लिव इन टेंट मेड अप ऑफ एनिमल स्किन. समर्स में कहाँ रहते हैं ये? एनिमल के स्किन का टेंट बनाते हैं एंड दे कैन लीव इट देयर. दीज कॉल्ड अ टॉपिक्स. और उसी एनिमल के टेंट को क्या कहते हैं? टॉपिक्स. नॉर्मली वी कॉल्ड अ टेंट, बट द टेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन दे कॉल्ड अ टॉपिक्स. Nowadays Eskimos lead a settled life. बेटा nowadays क्या है? Eskimos भी अब settled lives में रह रहे हैं. They live in houses in a made of wood. यानी कि अब वो igloos में नहीं रह रहे, अब वो कहाँ रह रहे हैं? wood के houses में रह रहे हैं. They live in village और town. अब उन्होंने क्या है? village और town बनाना शुरू कर दिया है. And located on the sea coast. यानी कि sea coast means आ बैंक ऑफ सी, यानी कि सी के किनारे, यानी कि समुद्र के किनारे इन्होंने अपने वुडन हाउसेस बनाकर रहने लगे हैं. किसने? इन्यूट्स और स्कीमोस. बेटा स्कीमोस और इन्यूट एक ही चीज़ है. ओके, पहले अर्लियर में दे कॉल्ड स्कीमोस, बट नाउ अडेज दे कॉल्ड इन्यूट्स. सो अभी हमें पता चला कि कैसे रहते हैं. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये काम क्या करते हैं. सो बेसिकली ऑब्वियसली सी के पास रहते हैं तो क्या मेन ऑक्यूपेशन होगा? फिशिंग. फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ पीपल इन ग्रीनलैंड. दे ऑल्सो एंगेज मीन्स बिजी इन श्रिम्प फिशिंग. श्रिम्प फिशिंग मतलब
बेटा श्रिम्प का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल सी क्रीचर, छोटे छोटे झींगा मछली, केकड़े, इन सबको भी ये कैच करते हैं यानी पकड़ते हैं, ठीक है। हंटिंग ऑफ वेल, वेल का हंट मीन्स शिकार करते हैं। एंड वेल्स फॉर मीट एंड ऑयल इज़ नॉन एज वेलिंग, और उस वेल के मीट को ये खाते भी हैं, सेल आउट भी करते हैं और उसके मीट से ऑयल भी बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ वेलिंग। दे यूज़ अ वेपन कॉल्ड हार्पून फॉर हंटिंग। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को काटने के लिए आपको भी क्या चाहिए होता है, नाइफ चाहिए होता है। सेम एज दैट एक हंटिंग वेपन है, दे कॉल्ड अ हार्पून। हार्पून क्या है, इट्स अ स्पेयर विद द शाफ्ट एंड बार्बेड पॉइंट ऑफ थ्रोइंग, यानी कि ये एक तरीके का हंटिंग वेपन है जिससे कि शिकार किया जाता है। दे यूज़ ऑल द पार्ट्स ऑफ एनिमल दे हंट एंड देयर मीट एंड स्किन ऑफ होम्स एंड क्लोथ, और वो उसके क्या करते हैं, उसके मीट को खाते भी हैं और वेल की स्किन के घर भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं। एंड द यूज़ ऑफ अ बोन, और उसके बोन से हार्पून भी बनाते हैं। हार्पून इज़ अ वेपन, ओके। द ऑयल ऑफ दे फैट यूज टू मेक कैंडल्स, और वेल की ऑयल से क्या करते हैं, वेल की बॉडी स्किन से जो ऑयल निकलता है उसकी कैंडल्स बनाते हैं। फूड ग्रेन आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। नाउ अ डेज पीपल यूज राइफल इन द प्लेस ऑफ हार्पून ऑफ हंटिंग, यानी कि अगर इन्हें अनाज खाना है तो ये दूसरी कंट्री से क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। और अभी के डेज़ में दे कैन यूज़ राइफ़ल। राइफ़ल इज़ अ काइंड ऑफ गन को ही राइफ़ल कहा जाता है। अब ये हार्पून यूज़ नहीं करते हंटिंग के लिए, नाउ दे आर यूजिंग राइफ़ल्स। सो बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन वॉच फुल वीडियो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए पूरी वीडियो देखना। एंड टुडे इज़ योर होमवर्क एक्सरसाइज यू कैन डू इन योर नोटबुक। आपको इस नोटबुक में एक्सरसाइज करनी है। नो नीड टू राइट थ्री ऑप्शंस, आपको 3 ऑप्शंस लिखने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट ओनली क्वेश्चन एंड देयर आंसर, 1 वर्ड आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव ऑल्सो फिल्ड हेयर। एंड मैचिंग में आपको एरोज नहीं बनाने, यू कैन जस्ट राइट फ्रंट ऑफ देम, यानी कि गुन्सबर्ग फील्ड को जैसे माउंटेन है तो आप माउंटेन उसके सामने लिखेंगे। बेटा डू योर वर्क इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ कंप्लीट मैनर, गंदी हैंड राइटिंग बिल्कुल भी ना हो। डू योर वर्क ऑन टाइम, अगेन आई एम सेइंग डू योर वर्क ऑन टाइम। Thank you so much students beta. If you having any problem in a particular question, so you can ask on a query time. But अगर आपको किसी particular word समझ नहीं आ रहा तो you can use dictionary. और if you don't have dictionary तो आप गूगल पे जाकर उस पर्टिकुलर वर्ड लिखो, लाइक क्लाइमेट मीनिंग। जैसे आई जस्ट वांट टू नो कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, तो मैं गूगल पे टाइप करूँगी क्लाइमेट मीनिंग, तो आपको क्लाइमेट का मीनिंग हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इट विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।